آج کا جو عنوان ہے وہ ہے جب ایمان کمزور محسوس ہو. آج ہمارے سرمن کا عنوان ہے جب ایمان کمزور محسوس ہو. When faith seems to fail. جب ہمیں لگے کہ ہمارا ایمان فیل ہو رہا ہے, ہمارا ایمان کام نہیں کر رہا. بائبل مقدس میں ہمیں بارہا ایسی آیات ملتی ہیں جن میں لکھا ہے کہ راست باز کس سے جیتا رہے گا؟ ایمان سے جیتا رہے گا. اور پھر یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ہم ایمان ہی سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. سو میں ایمان کی پکچر آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, تو وہ یہ ہے کہ جس ایمان کے یہاں پر بار بار بات ہو رہی ہے یہ سیونگ فیتھ ہے, نجات بخش ایمان. یہ وہ ایمان نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلے آپ کو پتا آپ کو بس مل جائے گی. دس از ناٹ دیٹ کائنڈ آف فیتھ. یہ وہ والا فیتھ ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے. اور وہ ایمانداروں مسیحی ایمان یہ ہے, دو چیزوں پر بیس کرتا ہے, مسیح کے کام اور مسیح کی ذات کو قبول کرنا یا اس پر ایمان رکھنا ہمارا ایمان ہے. اب مسیح کی ذات کیا ہے؟ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ خدا ہے, وہ مجسم ہو کر انسان بن کر زمین پر پیدا ہو. اور اس کا کام کیا ہے کہ اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. یہ دونوں چیزیں مسیحی ایمان کی بنیاد ہیں اور اسی ایمان کی بائبل مقدس بات کرتی ہے. اس ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اس ایمان کے بغیر ہم راست باز ٹھہرائے نہیں جا سکتے اور راست باز اسی ایمان کے وسیلے سے جیتا رہے گا. امین. ایمان کلیئر ہو گیا. سو میں نے کہا بائبل مقدس ایمان پر بہت زور دیتی ہے. اور ایمانداروں ایک بات ذہن میں رکھیے, ہمیں صرف ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے جسے ہم تھامے رکھیں, بلکہ ہمیں ایسے ایمان کی بھی ضرورت ہے جو ہمیں تھام کر رکھے, جو ہمیں محفوظ کر کے رکھے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں, خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کا جواب بڑا فرق آتا ہے. بعض اوقات ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خداوند مجھے میری جاب پر پروموشن چاہیے, شاید اگلے دن ہمیں ٹرمینیشن لیٹر مل جائے کہ آپ کو جاب سے نکالا جاتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے کسی عزیز کی بیماری کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں اور ہمارا وہ بہن بھائی ماں باپ یا کوئی بھی جو ہمارا عزیز ہے وہ زیادہ ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ چیزیں ہماری مرضی کے مخالف جاتی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں, ہم ایمان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں ہمارے بڑے اچھے نمبر آئے بنا پڑھے, ہے نا, ہم بڑی کوشش کرتے ہیں ہمارے ٹیسٹ اچھے ہوں, پیپرز میں رزلٹ اچھا ہے, لیکن ویسا نہیں ہوتا. سو واٹ ہیپنس کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کام نہیں کر رہا, ہمارا ایمان ہمیں رسپونڈ نہیں کر رہا, ہمارا ایمان اس طرح سے کام نہیں کر رہا. اور شاید کہیں نہ کہیں جتنے ایماندار یہاں پر بیٹھے ہیں آپ اس تجربے سے گزرے ہوں گے, کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی میں آئی ہوئی تکلیف جانے کا نام ہی نہیں لیتی, پریشانیاں آتی ہیں وہ ہماری زندگی میں گھر کر لیتی ہیں, دکھ آتے ہیں, آنسو آتے ہیں, وہ رکنے کا نام نہیں لیتے. ہم بڑی بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم مایوسی کا اور پست حالی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کام نہیں کر رہا, ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارا ایمان ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور عبرانیوں کے مصنف نے اس 11ویں باب کے اس اقتباس کو جو بھی پڑھا گیا, اس اقتباس کے مطابق عبرانیوں کا مصنف اس بات پر روشنی ڈال رہا ہے کہ ہمیں دو قسم کے ایمانداروں کا گروہ ملتے ہیں. ایک وہ جنہوں نے ایمان کے وسیلے سے مشکلات کا سامنا کیا اور ایک وہ جنہوں نے ایمان کے وسیلے سے مشکلات پر فتح حاصل کی. سو دو قسم کے ایمانداروں کا, ایسے جنہوں نے اپنے ایمان کے وسیلے سے مشکلات پر فتح حاصل کی, مشکلات سے نکل گئے, بیماریوں سے شفا حاصل کی, اور ایسا بھی گروہ ہے جنہوں نے ایمان کے وسیلے سے مشکلات کا ڈٹ کر سامنا بھی کیا. سو دو قسم کے لوگ ملتے ہیں دونوں ہی ایماندار. اب اگر اس اقتباس کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ غور سے دیکھیں گے کہ دو لوگ ہیں, ایک وہ جنہوں نے اپنے ایمان کے وسیلے سے مشکلات سے اسکیپ حاصل کیا, مشکلات سے نکل گئے, ایک وہ گروپ جنہوں نے ایمان کے وسیلے سے مشکلات کا باقاعدہ سامنا کیا, ان کو انڈیور کیا, ان کو برداشت کیا, ان کے اندر ان حالات میں ثابت قدم رہے. سو کیا دونوں کے پاس ایمان نہیں تھا؟ ایمان دونوں گروہوں کے پاس تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے ایمان کا پرپس کیا تھا, ان کے ایمان کو کس طرح سے آؤٹ کم آنا ضروری تھا. اب میرے عزیزوں, میں نے کہا ایمان اچھی بات ہے, ہمارے پاس ایمان ہو کہ ہم مشکلات سے نکل جائیں.
हम मुश्किलात पर फतह हासिल करें, हम मुश्किलात में से निकल सकें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है हमारे पास ऐसा ईमान हो जो मुश्किलात में हमें साबित कदम रहने दे, जो मुश्किलात में हमें डटे रहने में मददगार साबित हो। हमें ईमान की ज़रूरत तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमें मैच्योर फेथ की, बालिग ईमान की ज़रूरत है, मजबूत ईमान की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल फेथ की ज़रूरत है। ऐसा ईमान जो मुश्किलात में हमें थामे रखे, जैसे हम ना थामे बल्कि वो ईमान मुश्किलात में हमें थामे रखे, हमें मजबूत करे। सो आज बालिग ईमान के बारे में, शायद ईमान का हम सब ने तजर्बा किया होगा, आज हम बालिग ईमान के बारे में सीखेंगे, मैच्योर फेथ के बारे में, मजबूत फेथ के बारे में। मजबूत ईमान, ऐसा ईमान जो श्योर, जो यकीनी है, ऐसा ईमान जो कभी हारता नहीं, ऐसा ईमान जो कभी थकता नहीं, ऐसा ईमान जो कभी पस्त हिम्मत नहीं होता। और क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि बहुत से ईमानदारों को मैं भी शख्सी तौर पर जानती हूँ और आप भी जानते होंगे, वो तब तक खुदा के साथ ठीक रहे जब तक उनकी जिंदगी ठीक रही। जब उनकी जिंदगी में परेशानियां आई तो उन्होंने खुदा के साथ लाताल्लुकी इख्तियार की, उन्होंने खुदा के साथ पैचअप को तोड़ दिया, खुदा के साथ ताल्लुक को खत्म किया, ये सोचकर कि खुदा को मेरी फिक्र नहीं है, खुदा को मुझसे मोहब्बत नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां और इतनी फिक्रें क्यों हैं? तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे, हम सबको ईमान की जरूरत तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैंने कहा हमें बालिग ईमान की जरूरत है, हमें मैच्योर फेथ की जरूरत है। सो मैच्योर फेथ के बारे में सीखने के लिए आज हम 3 नुकात सीखेंगे। सबसे पहला नुकता जो मैच्योर फेथ के बारे में हम सीखेंगे, बालिग ईमान के बारे में, तो नंबर 1 पॉइंट है मैच्योर फेथ बिलीव्स इन गॉड्स सुपरनैचुरल पावर। जो बालिग ईमान है वो खुदा की माफूकल फितरत, कुदरत पर यकीन रखता है। बालिग ईमान जानता है कि मेरा खुदा कादरे मुतलक है, मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। अब इसी ईमान का तजर्बा हमें इब्रानियों का मुसन्निफ बताता है। 33वीं आयत में लिखा है, उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। और 35वें आयत के पहले हिस्से में लिखा है, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। ये वो बालिग ईमान है जो खुदा की कुदरत पर यकीन रखता है, जो जानता है कि खुदा कादिर मुतलक है, खुदा सब कुछ कर सकता है। और ये तो तमाम वाकयात का जिक्र है जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो दानियल जिसको शेरों की मान में डाला गया, और क्या हुआ? वो शेर भूखे थे लेकिन उन्होंने दानियल को कुछ भी नहीं किया। सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया और उन्हें कोई जरूरत ना पहुंचा। दाऊद की कहानी से हम सब वाकिफ हैं। यही बालिग ईमान दाऊद के पास था जब उसने हालेलुया, जब उसने 9 फुट 9 इंच के जाति जूलियत को मार गिराया। उस वक्त दाऊद का ईमान क्या था? वो ये था कि ये मेरे खुदा को ललकारता है तो ये मुझसे जीत नहीं सकता। उस वक्त जब लोग सोच रहे थे कि जाति जूलियत बहुत ताकतवर है, दाऊद उसे छू भी नहीं सकता, दाऊद का ये बालिग ईमान उस वक्त ये सोच रहा था कि जाति जूलियत इतना बड़ा है कि मेरा निशाना छूट ही नहीं सकता। उस वक्त जब लोग सोच रहे थे जाति जूलियत पावरफुल है, उसने इतने लोगों को हराया है, इतने लोगों को मारा है, उसका बहुत कद है, वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत बड़ा है, हम इससे लड़ नहीं सकते। उस वक्त वो छोटा सा बच्चा दाऊद इसी बालिग ईमान के वसीले से ये सोच रहा था कि जाति जूलियत कितना भी कद में बड़ा क्यों ना हो जाए, ये मेरे खुदा के नजदीक बहुत छोटा है। और मैंने कहा बालिग ईमान खुदा की कुदरत पर यकीन करता है। दाऊद जानता था कि जाति जूलियत मेरे खुदा की कुदरत के आगे कुछ भी नहीं है। इसी ईमान के वसीले दाऊद ने जाति जूलियत को मार गिराया। नए अहदनामे में पतरस रसूल का जिक्र मिलता है
पतरस रसूल को और बाकी रसूलों को मना किया जाता था कि आपने यीशु का नाम लेकर मनादी नहीं करनी। और पतरस रसूल को पकड़ा गया, कैद खाने में डाला गया, और रात के पहर क्या हुआ, फरिश्ता आया और बड़े सुकून से पतरस को कैद खाने से बाहर निकाला और कहा जाकर मनादी कर। क्या ये कहीं मौजे से कम था? पतरस के लिए छोटा मौजा था कि जेल में सब बंद हैं, सब कैद हैं, लेकिन खुदा का फरिश्ता आता है और पतरस को उस कैद से बड़ी आसानी से निकाल देता है। ये वो ईमान है जो खुदा की कुदरत पर यकीन करता है। और मैंने कहा हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं। आप जितने ईमानदार यहाँ बैठे हैं, छोटी सी बात से लेकर बड़ी बात तक कहीं ना कहीं आपने खुदा की कुदरत का तजर्बा किया है अपनी जिंदगी में, अपनी मुश्किलात में, अपने बुरे हालात में आपने खुदा की कुदरत का तजर्बा किया है। आप जानते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है। ये वो ईमान है जो जानता है कि जो खुदा अपने मुंह के लफ्जों से पूरी कायनात को खलक कर सकता है, वो मुझे हर मुश्किल से निकालने की कुदरत रखता है। कि वो ईमान है जो जानता है कि अगर खुदा लाजर को जिंदा कर सकता है तो मेरे मुर्दा अजीजों को भी जिंदा रखने की कुदरत रखता है। ये वो ईमान है जो खुदा की तख्लीक की कुदरत पर ईमान रखता है। ये वो ईमान है जो खुदा की अजमत पर यकीन रखता है। और मैंने कहा ये वो ईमान है जो ये जानता है कि मेरा खुदा कादिर मुतलक है। ये बालिग ईमान की पहली सिफ्त है जो हम सीख रहे हैं। दूसरी बालिग ईमान की जो सिफ्त है वो है मैच्योर फेथ बॉज़ टू द सॉवरेन पर्पसेस ऑफ गॉड। जो मैच्योर फेथ है, जो बालिग ईमान है, वो खुदा की हकमियत के मंसूबों की ताबेदारी करता है। सादा लफ्जों में जो मैच्योर फेथ है, जो बालिग ईमानदार है, जो बालिग ईमान है, वो खुदा की मर्जी पर सर झुका देता है, वो खुदा की मर्जी पर आमीन कह देता है। अभी हम बाकी के पैराग्राफ को अगर पढ़ें तो वहां पे बड़ी खूबसूरती से लिखा है, आग की तेजी से बचिए, तलवार की धार से बचिए। और साथ ही इब्रानियों का मुसन्निफ एक दूसरा चैप्टर खोलता है, दूसरे ग्रोह का जिक्र करता है, और वहां पे लिखा है बाज मार खाते खाते मर गए। इतनी मार खाई के मर गए। और फिर लिखा है मगर रिहाई मंजूर ना की। क्यों रिहाई मंजूर ना की? कि हम यीशु का इनकार नहीं करेंगे। हमें मरना पसंद है लेकिन हम यीशु का इनकार नहीं करेंगे ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बास छठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक न थी, वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए। ये भी ईमान के सुलमा है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है ये भी क्या थे? ईमानदार थे। ये भी ईमान के सुरमा है। जकरिया नबी को संसार किया गया। स्टिफनस के बारे में हम सब जानते हैं, उसे संसार किया गया और उसे मारा गया। और शायद कोई थर्ड पर्सन, आपको स्टिफनस संसार किया जा रहा था, पौलुस जो कि उस वक्त साउल था, वो वहीं पे खड़ा देख रहा था। और शायद कुछ लोग देखते होंगे और ये सोचते होंगे कि अगर स्टिफनस खुदा का वफादार होता तो खुदा कभी भी इसे संसार होने नहीं देता। बहुत से लोग सोच होंगे कि शायद स्टिफनस की जिंदगी में कोई खामी है, इस वजह से इसके साथ ये सलूक हुआ। तो मेरे जो बाइबल मुकद्दस फरमाती है स्टिफनस ईमान से भरपूर और रूहुल कुद्स से मामूर था। उसके ईमान में कमी नहीं थी, रूहुल कुद्स से मामूरी उसकी जिंदगी में मौजूद थी। लेकिन उसके मुतरादिफ हमें पतरस रसूल मिलता है, वो भी रूहुल कुद्स से मामूर था, वो भी ईमान से भरपूर था। लेकिन मैंने कहा खुदा का सॉवरेन पर्पस, खुदा की हकमियत का मंसूबा बड़ा अहम है। और पतरस जो रूहुल कुद्स से मामूर था, ईमान से भरपूर था, जब उसने वाज किया तो 3000 लोग उसकी कलीसिया में शामिल हुए। लेकिन जब स्टिफनस ने वाज किया तो शायद 3000 लोग नहीं, 3000 पत्थरों का उसे सामना करना पड़ा। है दोनों ईमानदार थे, है दोनों रूहुल कुद्स से मामूर थे, लेकिन दोनों की जिंदगी में खुदा का मकसद फर्क था। आमीन। दोनों की जिंदगी में खुदा का मकसद फर्क था। और खुदा यकीनन हमारी जिंदगियों में भी मकसद रखता है। और अगर आप इन सारे वाकयात को, जहाँ पर इब्रानियों का मुसन्निफ जिन लोगों का जिक्र कर रहा है, आप हैरान होंगे क्या इतना आसान है?
आरे से 2 हिस्सों में चीरे जाना और इस कदर अजियत की मौत मरना। इन लोगों के साथ बदसलूकी की गई, लेकिन इन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। और मैंने कहा कि ईमान तो है कि खुदा कादिर मुतलक है, लेकिन बालिग ईमान की ये भी सिफ्त है कि वो जानता है कि खुदा की एक मर्जी भी है। खुदा एक मर्जी रखता है, खुदा का एक पर्पस है, खुदा का एक सॉवरेन हकमियत में रहते हुए खुदा एक बड़ी सतह पर एक मंसूबे को लेकर चल रहा है। उन लोगों को मारा गया, उन पर तेल छिड़ककर आग लगा दी जाती ताकि रात के वक्त रोशनी की जाए। ईमानदारों के साथ जुल्म किए गए, और यहाँ तक कि अगर आप कदीम तारीख पढ़े तो मसीहियों को, ईमानदारों को उनकी तस्लील की जाती थी, और इस बात को लोग गेम्स के तौर पर लेते थे। उनके पीछे भूखे कुत्तों को डाल दिया जाता था, भागे जाते थे, और लोग इस बात का फन समझते थे कि अब ये मसीही अपने आप को कैसे बचाएंगे। भूखे शेरों की मान में उन्हें डाला जाता, उनको अजियत दी जाती, जानवरों की खालों में उनको सी दिया जाता और धूप में डाल दिया जाता। जिस तरह से वो खाल सूखती और सुकड़ती, उसी तरह से ईमानदारों को तकलीफ होती। और मैंने कहा वो लोग इस बात में खुशी मनाते थे, मसीहियों को अजियत देना उनका मशगला था, वो इस चीज को पसंद करते थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है इनमें से एक ने भी रिहाई मंजूर ना की। उन्होंने मौत पसंद की, लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। तो मेरे जैसे ये भी ईमानदार थे, ये भी ईमान के सूरमा थे। इन्होंने एक ग्रुप मिला जिन्होंने ईमान का इस्तेमाल किया और फतह को हासिल किया, और एक ग्रुप हमें मिलता है जिन्होंने ईमान का इस्तेमाल किया और मुश्किलात में डटे रहे, कायम रहे, साबित कदम रहे। बड़े खुदावंद के एक अजीम खादिम हैं वॉरेन विट्ज़बर्ग, वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। मैं उसकी ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो कहते हैं बेहतर होगा अगर आप अपने ईमान की बुनियाद हालात को ना बनाएं, क्योंकि अगर आप अपने ईमान की बुनियाद हालात को बनाते हैं तो कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात आएंगे कि आपको लगेगा कि खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता। हमने जब ईमान के बारे में सीखा था तो हमने ये सीखा था कि हमारे ईमान को 3 चीज़ों से खतरा है। और सबसे पहले हालात थे। हमारे ईमान को किससे खतरा है? हालात से। और फिर हमारे ईमान को जज्बात से भी खतरा है, और फिर हमारे ईमान को दलाइल से भी खतरा है। जज्बात की बुनियाद पर ईमान को नहीं रखना। आज अच्छे हालात हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, अच्छे सारे रिश्तेदार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें हमेशा ऐसी रहेंगी। कल को बदलेंगी तो फिर हमारे दिल में ये शक पैदा होगा शायद खुदा हमारे साथ नहीं है। सो हमें अपने हालात की बुनियाद पर खुदा पर ईमान नहीं रखना। याद रखें ईमानदार कि हमें ऐसा बहुत से लोग समझते हैं जब मैं यीशु को कबूल करूँगा मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं रहेंगी, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मसीह से पहले दुख और तकलीफ होना एक फर्क चैप्टर है, और मसीह को कबूल करने के बाद आपकी ज़िंदगी में एजाज सानिया आना एक मुख्तलिफ चैप्टर है। ये मुख्तलिफ बात है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि ईमानदार की ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आती। पौलुस रसूल इस बात पर रोशनी डालते हैं। रोमियो के खत में वो कहते हैं कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। अब मसीहियों पे आने वाली मुश्किलात क्या है? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। रसूल कहते हैं कि क्या ये सब चीज़ें हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकेंगी? इसका मतलब है ये चीज़ें मसीहियों की ज़िंदगी में आ सकती हैं। आपकी ज़िंदगी में मुसीबत भी आ सकती है, आपकी ज़िंदगी में काल भी आ सकता है, ईमानदार होते हुए आपकी ज़िंदगी में परेशानियां भी आ सकती हैं। लेकिन मेक श्योर अगर आप बालिग ईमान के वारिस हैं, अगर आप बालिग ईमान अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, तो फिर आप जानते हैं कि ये चीज़ें मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये चीज़ें कतई तौर पर ताकत नहीं रखती कि मुझे मेरे यीशु से जुदा कर सके। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे माशरे में एक और भी मसला है। एक थियोलॉजी है जिसे रेट्रिब्यूशन थियोलॉजी कहा जाता है। ये थियोलॉजी ऐसी है जब कोई बीमार पड़े तो हम जल्दी से उसे जज करने लगते हैं कि देखा ना ये इतना बुरा था इसलिए इसको ये बीमारी लगी है। चोट लग जाए तो हम कहते देखा ये ऐसे कर रहा था इसलिए इसको ये चोट लगी है। सो ये हम जो किसी की जिंदगी में मुसीबत आने पर उसके किरदार पर जो उंगली उठाते हैं इसे रेट्रिब्यूशन थियोलॉजी कहते हैं, और ये ठीक नहीं है। हमारे पास कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी में
आई हुई मुसीबत पर उसे जज करें कि उसकी ज़िंदगी में मुसीबत इसलिए आई क्योंकि 20 साल पहले उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं होता। ईमानदार की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं और हकीकत यह है कि ईमानदार ही की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं। आप तो अगर आप किसी ने यीशु को कबूल ही नहीं किया, वो तो ऑलरेडी इब्लीस की पार्टी का, उसे वो क्या भी तंग करेगा, वो तो उसे सपोर्ट करेगा, उसे पैम्पर करेगा, अच्छे हालात देगा। लेकिन जब आप मसीह की पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जब आप यीशु के पैरोकार बनते हैं, हकीकत में आपकी ज़िंदगी में मुसीबतों का आगाज़ उस वक्त होता है। उस वक्त आप परेशानियों का सामना करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, यीशु ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहीं भी यीशु ने ये नहीं कहा कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। यीशु ने कहीं भी नहीं कहा कि आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा। लेकिन ईमानदारों के साथ क्या होता है, वो मुझसे यीशु से मुख्तलिफ तवक्कुआत रखते हैं कि जब मैं यीशु को कबूल करूँगा मेरे हालात फ़र्क होंगे। और जब हालात फ़र्क हो जाते हैं, वैसे नहीं होते जैसे उसने सोचे होते हैं, तो वो मसीह के लिए तासरात तब्दील कर लेता है। वो ईमानदार मसीह यीशु के बारे में फ़र्क तरह से सोचता है। चले मैं किसी आम की नहीं, मैं यूहन्ना सबागी की एग्जाम्पल देती हूँ। हम सब जानते हैं बड़ा अजीम नबी, और यीशु मसीह ने उसके बारे में जानते हैं क्या कहा। यीशु ने कहा जितने भी आज तक औरतों से पैदा हुए हैं वो यूहन्ना से बड़े नहीं। यूहन्ना सबागी उन सबसे क्या है, बड़ा है। अजीम नबी, खुदा का वफादार नबी, पुराने अहदनामे का आखिरी नबी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वैसे उनका जिक्र नए अहदनामे में मिलता है, लेकिन वो पुराने अहदनामे का नबी है। अब यूहन्ना सबागी जब आया, मसीह यीशु का कज़न भी था वो, और यीशु मसीह से 6 माह तकरीबन बड़े थे यूहन्ना सबागी। और यूहन्ना सबागी ने यीशु के लिए ये प्रीचिंग करना शुरू की, सबसे ये कहा कि आने वाले गजब से भागो, आसमान की बादशाही नजदीक है। तौबा की मनाने की, तौबा के लिए बपतिस्मा देना शुरू किया। और ये सारी प्रीचिंग यूहन्ना सबागी ने यीशु के लिए की। अब हुआ क्या, जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया। उन दिनों में यूहन्ना सबागी कैद खाने में गया। अब यीशु मसीह शिफा दे रहे हैं, मौजज़ात कर रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं। यूहन्ना सबागी थोड़ा सा इस बात पे, अब इन हालात में यूहन्ना सबागी की जिंदगी में भी शक के बादल मंडलाए। और वो क्या बादल थे कि ये तो अदालत करने आने वाला था, अभी तो इसने अपनी हुकूमत करनी थी, अभी तो यीशु ने बादशाहत कायम करनी थी। वो ये जानता था कि यीशु मुनज्जी है, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि यीशु जो है वो अपनी बादशाहत कायम करेगा। लेकिन हम जितने ईमानदार हैं, हम जानते हैं कि यीशु से अपनी पहली आमद पर सिर्फ मुनज्जी के तौर पर आया था। पहली आमद में यीशु हमारी निजात के लिए आया था। अब जब दूसरी आमद में आएगा तो वो क्या बनकर आएगा, बादशाह बनकर आएगा। अब जब यीशु आएगा तो अब वो मजलूम बनकर नहीं आएगा, अब वो अदालत करने आएगा। अब यूहन्ना सबागी के दिल में ये दोनों इवेंट्स मिक्स हो गए, चीजें उसकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुई। तो यूहन्ना सबागी ने यीशु को एक मैसेज भेजा। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजील में, गौर से सुनिएगा। और यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर, हाल क्या सुना कि यीशु शिफाएं दे रहा है, यीशु मौजज़ात कर रहा है। अब यूहन्ना ये तवक्को कर रहा था कि यीशु अभी तलवार पकड़ेगा और सबकी अदालत करेगा, गुनहगारों को सजा देगा, रास्तबाजों को अपनी जिंदगी में ले जाएगा। और उसे देखा कि यीशु ऐसा नहीं कर रहा, तो उसने क्या किया, उसने अपने शागिर्दों की मारिफत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। ये वही यूहन्ना सबागी है जो यीशु को देखकर कह रहा था कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। और ये वही यूहन्ना सबागी है जो कैद खाने में मुझसे यीशु पर सवाल पूछ रहा है, क्या तू वही मसीहा है या हम किसी और की राह देखें। तो मेरे जी, तो यीशु ने क्या जवाब दिया, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो। क्या सुनते और क्या देखते हो, कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। यीशु ने कहा यूहन्ना सादा अल्फाज में, अगर तुझे मैं कैद से नहीं छुड़ा रहा, अगर अभी मैं अपनी हुकूमत कायम नहीं कर रहा, अभी मैं अपनी बादशाहत नहीं बना रहा, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं वो मसीहा नहीं। लेकिन यूहन्ना इस बार मेरे आने का मकसद गुनहगारों को खुशखबरी सुनाना है।
इस बार मेरे आने का मकसद बनी नौ इंसान को गुनाह से आज़ादी दिलाना है। आऊँगा अदालत के लिए दूसरी आमद पर, जब मैं अदालत भी करूँगा और अपनी बादशाहत भी कायम करूँगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने यूहन्ना अस्तबागी का ये डाउट इस तरह से क्लियर किया, और मैंने कहा जब चीज़ें हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती तो हम सोचने लगते हैं क्या खुदा है भी या नहीं, क्या खुदा मेरी दुआ सुन भी रहा है या नहीं, क्या खुदा को मेरी फिक्र है भी या नहीं। मुकद्दस, खुदा को मेरी फिक्र है भी या नहीं। ठीक है, नीचे रखो। सो खुदा, मैंने कहा हुकूमती तौर पर हकमियत में खास मंसूबे के साथ काम करता है। और याद रखें मेरे अज़ीज़ों, आप खुदा से दुआ में कुछ भी मांगते हो, आप खुदा से दुआ में कुछ भी दरख्वास्त करते हो, और अगर वैसा नहीं होता तो खुदारा इब्लीस को कभी भी मौका ना दे कि वो आपके दिल में ये शक भी पैदा करे कि खुदा वो नहीं कर सकता। कभी भी। क्या खुदा औलाद नहीं दे सकता? दे सकता है। क्या खुदा चाहे तो आज हमें बेहतरीन हालात नहीं दे सकता? दे सकता है। उसकी एक हाकमियत में एक मंसूबा है, और उस मंसूबे के मुताबिक खुदा चीज़ों को लेकर चलता है। हमें कभी भी इस बात पर शक नहीं करना कि शायद खुदा को मुझसे मोहब्बत नहीं, खुदा को मेरी फिक्र नहीं है, खुदा को इस बात का एहसास नहीं कि मैं कितनी मुसीबत में हूँ। खुदा को आपसे कहीं ज़्यादा एहसास है आपके इन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा के खादिम कहते हैं मजबूत ईमान की गवाही ये नहीं है कि आपने जो कुछ मांगा आपको मिल गया। मजबूत ईमान की गवाही ये नहीं है कि आपने जो कुछ खुदा से मांगा आपको मिल गया। मजबूत ईमान की गवाही ये है कि खुदा ने जो कुछ आपने दिया, आपने उस खुदा ने जो कुछ आपको दिया आपने उसे कबूल कर लिया। ये मजबूत ईमान की गवाही, ये मजबूत ईमान है। मेरे जैसे मैंने कहा हम सब ईमान रखते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं खुदा कादिर मुतलक है, खुदा कुदरत वाला, खुदा मौजज़ात वाला। कहीं ना कहीं नन्हे मुन्ने छोटे छोटे मौजज़ात हमने भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन बालिग ईमान की गवाही ये है कि अगर खुदा ना करे तो आपका रवैया क्या होगा। सो जितने भी लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे आज से बालिग ईमान की प्रैक्टिस शुरू करनी है, तो अपने ईमान के आगे एक लफ्ज़ लिख लें, इफ़ नॉट, अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा। सो इसकी भी बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल जिसने मुझे हमेशा बड़ा इंकरेज किया, दानियल 3 बाब में हमें इसकी एग्जाम्पल मिलती है। अगर आप निकाल सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बड़ा खूबसूरत वाक़या है। दानियल नबी का सीफा 3 बाब में हमें ये वाक़या मिलता है। डैडी बता रहे थे कि रिसर्च के मुताबिक सदरक, मेसक, अब्दुन्नगो नौजवान थे। क्या थे? हार्डली 20 साल तक की एज। कितने बच्चे यहाँ पर 20 साल की एज वाले? लड़कियां नहीं हाथ खड़ा करेंगी, वो परेशान हो जाएंगी। लड़के बता देंगे 20 साल के करीब कोई है? अभी छोटे हैं, करीब भी नहीं है कोई 20 साल के। 19, 18, ये तो ज्यादा छोटे बच्चे हैं। मैथ्यू भाई, ये एज फिगर था सदरक, मेसक और अब्दुन्नगो का। यार मैथ्यू भाई भी जॉब छोड़ आए हैं, किसी ने इनको मना किया था चर्च आने से, इन्होंने भी ईमान का थोड़ा सा इजहार किया है। सो सदरक, मेसक, अब्दुन्नगो ने क्या किया? कहा गया कि जब म्यूजिक बजेगा तो आपने बादशाह की बनाई हुई मूर्ति को क्या करना है? सिजदा करना है। मैं आपके लिए पढ़ दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चले फिर हम 15वीं आयत से पढ़ते हैं। 15वीं आयत में लिखा है, अब अगर तुम मुस्तईद रहो कि जिस वक्त करना और नया और सितार और रबाब और बरबत और जगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सिजदा करो तो बेहतर। पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और फिर बादशाह अगली बात तो गलत ही कर गया। अगली बात बादशाह ने की, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। ये बादशाह को बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सदरक, मेसक और अब्दुन्नगो के ईमान को और मजबूत करने का बाइस बना। उसने कहा कि कौन सा माबूद तुमको यहाँ से छुड़ाएगा, कौन सा माबूद बचाएगा, क्योंकि अगर तुम सिजदा नहीं करोगे तो आग की भट्टी में डाले जाओगे। चले उन नौजवानों का जवाब सुनते हैं और देखें इन तीनों ने जवाब दिया, किसी एक ने नहीं दिया। तीनों का ईमान यूनिटी में था। तीनों ने कहा, सदरक और मेसक और अब्दुन्नगो ने बादशाह से अर्ज की। क्या किया? आजिज़ी, कोई गुस्सा नहीं, कोई जोशीलापन नहीं, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ बादशाह से कहा, बड़ी इज्जत के साथ, ऐ नबूकदनेस्सर,
इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी नहीं कि हम इस बात पर बहस करें कि कौन सा माबूद हमें बचा सकता है और कौन सा माबूद नहीं बचा सकता। वो कहते हैं देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, वही छुड़ाएगा। तो माबूद का पूछ रहा था, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वही हमें तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और फिर अब बालग ईमान का जुमला आने लगा है, एक मैच्योर फेथ जवाब देने वाला है। मैच्योर फेथ का जवाब क्या है? और नहीं तो अगर नहीं भी, अगर वो आग की भट्टी से नहीं भी बचाता ना बादशाह, ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। हालेलुया, जोरदार ताली नौजवानों के लिए। हालेलुया, हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। वो कहता अगर खुदा नहीं भी बचाता, पहली तो बात हम जानते हैं, पहला ईमान का नुक्ता क्या था? खुदा कादिर मुतलक है, खुदा कुदरत रखता है, खुदा बचा सकता है। पहला ईमान था उनका, पहली ईमान की सिफ्त उनके अंदर थी। अब दूसरी सिफ्त बाहर आई है, वो कहते हैं अगर नहीं, अगर खुदा ना भी बचाए तो हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। सवाल है कि ऐसे खुदा के लिए इतना रिस्क क्यों लेना जो आपको आपकी भट्टी से ना बचा सके? अजीजों, इसका जवाब यह है, सदरक मेसक अब्दुन्नजो जानते थे कि खुदा हाकिम है। खुदा अपनी हकमियत में एक मंसूबे के साथ चीज़ों को लेकर चल रहा है। हो सकता है उसके मंसूबे में हमारा आग में जलना हो, सो अगर हम आग में जल भी जाएं तो उसके खुदा होने का रुतबा नहीं बदल जाएगा, वो फिर भी हमारा खुदा रहेगा। इसीलिए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरी बनाई हुई मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे। आज कितने ईमानदार हैं जो दुआ में ये कहते हैं खुदा मुझे तुझसे ये चाहिए, और अगर नहीं भी तो फिर भी तू मेरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियों से इस बात का इकरार कीजिए। मैंने जब से ये वाकया बड़ी डिटेल में स्टडी किया है, मेरी दुआ में अगर नहीं का जुमला लाजमी हो। प्लीज आप सब अपनी दुआ में ये जुमला शामिल कर लें, ये जुमला आपको ताकत देगा, ये जुमला आपको तकवीत देगा। खुदावन मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो फिर भी तू मेरा खुदा रहेगा। खुदावन मुझे अच्छी जॉब चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो फिर भी तू मेरा खुदा रहेगा। खुदावन मुझे औलाद चाहिए, अगर नहीं तो फिर भी मेरा खुदा कौन है? तू ही है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। खुदावन से मांगे, आपको मांगने से कोई मना नहीं करता। बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन अपनी दुआ में अगर नहीं का लफ्ज रख लें ताकि इब्लीस आपकी हर दुआ के जुमले में शर्मिंदा हो, उसके पास मौका न रहे आपके ईमान को ठेस पहुंचाने का। खुदा से कहे खुदा अगर नहीं तो फिर भी तू मेरा खुदा रहेगा। ये बालिग ईमान है जो अपने अंदर अगर नहीं का लफ्ज रखता है। और याद रखिए, अगर आप अपने कलाम में, अपनी दुआ में, अपनी जिंदगी में अगर नहीं का लफ्ज रखते हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आपका ईमान कमजोर है, हरगिज इसका मतलब नहीं। लेकिन अगर अपनी दुआ में आप ये कहते हैं खुदावंद अगर नहीं, तो याद रखिए आपका ईमान कई गुना ज्यादा मजबूत है। एक सतह पर आपका ईमान कहीं ज्यादा पहले से मजबूत है, आपका ईमान पहले से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। ईमानदार की जिंदगी में परेशानियां पता कब आती हैं? जब वो खुदा से ना नहीं सुनना चाहते, जब उस खुदा दुआ का जवाब ना दे और वो डर जाते हैं। पिछले दिन एक बहन मुझे कह रही थी, मेरी क्लोज रिलेटिव है, मुझे कहती है आमना बाजी आप खुदा से दुआ करें और ये मांगे। तो मैंने कहा मैंने तो दुआ की है, लेकिन अगर खुदा ना भी करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कहने लगी नहीं आमना बाजी देखें, आप तो खुदा के खादिम हैं, आपको तो आइडिया है, हम खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा की औलाद है, हम खुदा से जिद कर सकते हैं। मैंने कहा मैं खुदा से जिद क्यों करूं, मैं खुदा के अजीम मंसूबे में खलल क्यों पैदा करूं? मैं जानती हूँ वो मेरा खुदा है, वो मेरे लिए बेहतर मंसूबा रखता है। हाँ मैं मांगती हूँ, लेकिन अगर नहीं तो फिर भी वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर मंसूबे रखता है। मैं जानती हूँ वो मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र करता है। अब मैंने कहा आज कितने ईमानदार हैं जो दुआओं का जवाब अगर नहीं आए तो फिर भी खुदा के साथ लिपटे रहते हैं। कितने ईमानदार हैं
جو جانتے ہیں کہ اگر نہ بھی خدا مجھے دے تو وہ پھر بھی میرا خدا ہے. اب دیا اکثر ناشتہ جب میں بناتی ہوں اس کی ڈیلی یہی ضد ہوتی ہے کہ میں نے بھی ناشتہ بنانا. اینڈ آئی نو کہ اس کے لیے چولہے کے پاس جانا یا توے پہ روٹی ڈالنا اس کے لیے سیف نہیں ہے. سو میں ہر بار اسے ڈیلی منع کرتی ہوں, اور وہ جب میں اسے منع کرتی ہوں تو وہ مجھے یہ کہتی ہے آگے سے, اگر آپ میری بات نہیں مانو گے تو پھر آپ مجھے اپنی بات نہیں منوا سکو گے. وہ مجھے یہی کہتی ہے. انگلش میں اس کا جملہ آتا ہے, if you don't listen me then I will not listen you. تو میں اسے کئی بار آرگیومنٹ نہیں کرتی کیونکہ اس نقطے پر میں اس سے ابھی بحث نہیں کر سکتی. ابھی وہ نہیں جانتی کہ آگ کے پاس آنا اس کے لیے سیف نہیں ہے. میرے عزیزو, خدا آپ کی اگر دعاؤں کا جواب نہیں دیتا تو وہ جانتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کو ابھی کن حالات میں رکھنا ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اگر خدا مجھے ان حالات میں رکھتا ہے, ہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں, آپ اپنے حصے کی محنت ضرور کریں, آپ اپنے حصے کی دعا ضرور کریں, آپ اپنے حصے کی راست بازی کے کام ضرور کریں, آپ اسپرچل ڈسپلن کو ضرور فالو کریں. لیکن ان سب کاموں کے باوجود اگر چیزیں اس طرح نہیں ہوتی جیسے آپ چاہتے ہیں تو پھر مان لیں خدا آپ کے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اس کے بعد ہم جانتے ہیں, میں نے پنکھا بند کروایا پھر بھی میری ڈائری کا پیج ادھر ادھر ہو جاتا. سو پولس رسول نے خدا سے کہا, پولس لکھتے ہیں کہ مجھے کانٹا چبھوا گیا, مجھے تکلیف ہوئی, مجھے درد ہوئی, اور میں نے خدا سے کہا کہ خدا یہ درد مجھ سے دور ہو سکتا ہے, کیا یہ تکلیف میری زندگی سے جا سکتی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں خدا کا کیا جواب تھا؟ خدا نے پولس سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا نے یہ نہیں کہا پولس میں دیکھ ابھی تیری تکلیف دور کرتا ہوں. خدا نے نہیں کہا دیکھ پولس یہ 1 سیکنڈ میں تیرے سے دور ہو جائے گا. خدا نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. آج ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں, شاید آپ سے کہا کہ اس کا فضل آپ کے لیے کافی ہے. اس کے فضل کو قبول کریں, اس کے فضل کو اپنی زندگی میں تجربہ کریں. میری دعا ہے خدا ہماری کلیسیا کو ایمان دے کہ آپ مشکلات سے نکل سکیں. آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں آپ ان پر اوور کم کر لیں, آپ ان پر فاتح ہو سکیں. لیکن اس سے بھی زیادہ میری دعا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ تو ایمان ہو کہ آپ مشکلات سے نکل سکیں, لیکن اس سے زیادہ آپ کے پاس بالغ ایمان ہو جب مشکلات سے نہ نکل پائیں تو کم از کم ثابت قدم ضرور رہیں, آپ ڈٹے ضرور رہیں. خدا آپ کو ایسا ایمان دے کہ جب آپ دعا کریں تو اپنی بیماری سے شفا پا جائیں. خدا آپ کو ایسا ایمان دے کہ جب آپ بیمار ہوں آپ دعا کریں اور اگلے لمحے آپ شفا پا جائیں. لیکن خدا آپ کو وہ بھی ایمان دے اگر آپ کو شفا نہ بھی ہو تو آپ پھر بھی خدا کی شکر گزاری کر سکیں, آپ پھر بھی خدا کی تعظیم کر سکیں. اور ایسا ایمان, ایسا ایمان ہمیں ایوب نبی کی زندگی میں ملتا ہے. ابلیس خدا سے کہتا ہے, اس کے پاس تو سب کچھ ہے, اچھا گھر ہے, اولاد ہے, روپیہ پیسہ ہے, اپنی سرزمین میں سب سے زیادہ امیر ہے. خدا کو کیوں تیرا انکار کرے گا؟ سب کچھ تو اس کے پاس ہے, کیوں انکار کرے گا؟ خدا نے کہا جا لے لے سب کچھ, صرف اس کی جان کو کچھ نہیں کرنا. کیا ہوا ایوب کے ساتھ؟ کچھ ہی وقت میں اس کا سب کچھ اس سے چھین گیا. اس کی اولاد, اس کا گھر, اس کی دولت, اس کے جانور, اس کا کاروبار, سب کچھ جاتا رہا. اس کے جسم پر زخم اور بیماری پیدا ہوئی. اس کی بیوی اس کے پاس آ کر یہ کہنے لگی کہ تو ابھی بھی خدا کی تحقیر نہیں کرتا, خدا نے تیرے ساتھ اتنا برا کیا. تو آپ جانتے ہیں ایوب نے کیا کہا؟ ایوب نے کہا اپنی بیوی سے کہا کہ تو نادان سی باتیں کیوں کرتی ہے؟ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ میرے عزیزو, ایوب کا ایمان صرف خدا سے شفا لینے والا ایمان نہیں تھا, ایوب کا ایمان خدا سے اس کی رضا لینے والا ایمان تھا. اور اس نے خدا سے اس کی رضا کو حاصل کیا, اس نے خدا سے اس کی مرضی کو حاصل کیا. اور میں نے کہا بالغ ایمان خدا کی جو سوورین پرپس ہے, خدا کی جو ایک بڑی سطح پر, حاکمیت کی سطح پر خدا ایک منصوبے کے ساتھ چل رہا ہے, اس کی فرما برداری میں رہتا ہے, اس کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے, اس کی مرضی کے آگے سر جھکا سکتا ہے, جھکا دیتا ہے. تیسرا اور آخری نقطہ جو ہم آج سیکھیں گے وہ ہے میچور فیتھ از بیسڈ آن دا سیٹلڈ پرومسز آف گاڈ. جو بالغ ایمان ہے وہ اس کی جو بنیاد ہے
जो बालिग और मेच्योर और मजबूत ईमान है, उसकी बुनियाद खुदा के अब्दी वादे हैं। उसकी बुनियाद क्या है? खुदा के अब्दी वादे हैं। उसकी जो बेस है वो खुदा के अब्दी वादे हैं। अगर हम उसी इक्तबास में चलें जो हमारा आज का हवाला था, 11वें बाब की 39वीं आयत से पढ़ोगे, गौर से सुनिएगा। रसूल लिखता है, और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, यानी कलाम मुकद्दस में आता है कि ये सब ईमान के सुरमा है। वो जिन्होंने मुश्किलात पर फतह हासिल की और वो भी जिन्होंने ईमान के वसीले से मुश्किलात का मुकाबला किया, दोनों ईमान के सुरमा हैं। तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली, वादा की हुई चीज उनमें से किसी को भी नहीं मिली। क्यों? इसलिए कि खुदा ने पेश भी नहीं करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाएं। खुदा ने जितने भी पुराने अहदनामे में अंबिया थे, रासबाज थे, उनमें से किसी को भी अभी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं किया। जितने नए अहदनामे के रसूल और अंबिया और जितने खुदा के पैरोकार थे, और आज के दौर में भी जो ईमानदार मरते हैं, उनमें से एक भी अभी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं किया गया। रसूल इस बात पर रोशनी डालता है कि खुदा उस वादा की हुई चीज को एक साथ जब मसीह यीशु आएगा, ईमानदारों को उस बादशाहत में इकट्ठे दाखिल करेगा। ये चीज रसूल क्यों कह रहा है? रसूल का मकसद ये है कि वो ईमानदार जिन्होंने इतनी तकलीफें, मौत बर्दाश्त की, सलीब पे उल्टा लटके, आरे से चीरे गए, जलाए गए और मारे गए, उन सब ने क्यों इतनी तकलीफ बर्दाश्त की अगर उन्होंने वो चीज हासिल ही नहीं अभी तक की? मेरे से तो याद रखें, अगर वो वादा की हुई चीज उनके हाथों में या उनके सामने नहीं ना, तो कम से कम वो उनके दिल में मौजूद थी। वो जानते थे कि हमारी मंजिल कहाँ है, वो जानते थे कि हमारी जिंदगियां यहाँ पर किसी भी तरह से खत्म हो, हमारी जिंदगियों का एंड कुछ और है, और खुदा यही चाहता है। प्रॉब्लम क्या है हम ईमानदारों का? हम मादी चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा फोकस ज्यादा मादी बरकत में होता है कि खुदा अगर मुझे बरकत देगा तो उसकी पहली निशानी है मेरे पास घर होगा, अगर खुदा मुझे बरकत देगा उसकी निशानी मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास अच्छी जॉब होगी, अच्छे लोग होंगे, अच्छे रिश्तेदार होंगे। ऐसा नहीं है। याद रखिए मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी आता है वो सब फानी है। वो सब क्या है? एक दिन ये सब खत्म होने वाला है। एक दिन ये सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक दिन सब का वजूद खत्म हो जाएगा। ना घर, ना गाड़ी, ना बैंक बैलेंस, ना स्टेटस, कुछ भी नहीं रहेगा। अगर इस दुनिया में रहते हुए आप किसी चीज पर भरोसा कर सकते हैं, अगर इस दुनिया में रहते हुए आप किसी चीज पर ईमान रख सकते हैं, अगर इस दुनिया में रहते हुए किसी चीज पर आंखें बंद करके आप रेस्ट कर सकते हैं, तो वो खुदा के अब्दी वादे हैं। और ईमानदार के पास कुछ भी नहीं है। ईमानदार की देखिए, आज आपके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है, आपको इज्जत नहीं ज़्यादा मिली, ख़ानदान से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, या मुख्तलिफ तजर्बात, आप सबके फ़र्क तजर्बात होंगे, आप सबकी फ़र्क ज़िंदगियाँ होंगी, आपकी मुख्तलिफ आजमाइशें और इम्तिहानात होंगे, कुछ भी हो ज़िंदगी में। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जितनी मादी चीज़ों को लेकर हम परेशान होते हैं या इब्लीस हमें इनमें उलझाए रखता है, इनमें से कुछ भी हमारा अच्छा खजाना नहीं है, इनमें से कुछ भी हमारे लिए नहीं है। अगर आज आप दुनिया में रहते हुए मशहूर नहीं भी हुए, नो प्रॉब्लम, बना ले जितने भी टिकटॉक वीडियोस बना ले, नहीं भी मशहूर हुए कोई बात नहीं, लेकिन आसमान पर आपके नाम का चर्चा है। आसमान पर यीशु अपने फरिश्तों से आपका जिक्र करता है, अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु को दी है। अगर इस दुनिया में रहते हुए आपकी कोई अजीज, आपका कोई अपना मर गया है, जिसकी जुदाई आपको इतनी तकलीफ से महसूस होती है, तो खुदा का ये भी अब्दी वादा है कि एक दिन आप उन अपनों से भी मिल सकेंगे। आपको इस दुनिया में ये उम्मीद नहीं, लेकिन खुदा के अब्दी वादों में आपको ये उम्मीद मिलती है। आज यहाँ पर आपके पास अच्छा घर नहीं, घर में टाइल्स नहीं लगी, या बड़ा फर्निश्ड घर नहीं है, बड़ा खूबसूरत घर नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आसमान पर आपके लिए महल तैयार किए जा रहे हैं, आसमान पर आपके लिए खूबसूरत घर तैयार किए जा रहे हैं। और यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह। He is making place for you। वो आपके लिए ऐसी जगह तैयार कर रहा है जो यहाँ पर आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत, इतनी मजबूत, इतनी कायम शुदा। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश होती है
کہ یہاں سے آپ کو پراسپیرٹی کے میسیجز نہ دیے جائیں, یہاں پر آپ کو خوشحالی کا کلام نہ سنایا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کچھ بھی آپ کا نہیں ہے. اس زمین پر ہم جتنا بھی پیسہ کما لیں وہ یہیں پر رہ جائے گا. ہماری حقیقی دولت آسمان پر ہے. ہمارا حقیقی سسٹم جو ہے, حقیقی گھر جو ہے وہ وہاں پر ہے. ہم یہاں پر نہ بھی اچھا کمائیں تو اٹس اوکے. اسی لیے ہم زیادہ معجزات پر بات نہیں کرتے. زیادہ معجزات پر آپ کو کلام سننے کو نہیں ملیں گے. دو خدا معجزات کرتا ہے, لیکن معجزہ یہ نہیں کہ آپ شوگر سے ٹھیک ہو گئے, آپ کینسر سے ٹھیک ہو گئے. حقیقی معجزہ یہ ہے کہ آپ گناہ کی غلامی سے آزاد ہو. حقیقی معجزہ یہ ہے کہ آپ یسوع کے ساتھ رشتے میں قائم ہو گئے. اس دنیا میں اچھا گھر گاڑی کرے, محنت کمائیں, آپ کو کوئی نہیں منع کر رہا, لیکن نظریں یہاں نہیں لگانی. نظریں کدھر رکھنی؟ گڈ لائف چرچ کا فوکس یہ ہے, یہاں پر آنے والا ہر ایماندار نظریں کدھر رکھے. وہ کہتے ہیں نا اس کی نظریں بڑی اونچی ہیں. وہ والی نظریں نہیں, آپ نے یہ والی اونچی نظریں رکھنی ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہو کہ میرا اچھا خزانہ آسمان ہے. ایمانداروں کا اچھا خزانہ کیا ہے؟ ہمارا اچھا خزانہ آسمان. اس لیے پولس رسول کہتے ہیں جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے. کہتے ہیں جیتا رہا تو یسوع کے ساتھ, مر بھی گیا تو فائدے کا کام ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. میرا فائدہ ہی ہونا ہے, مر کے بھی میرا کیا ہے؟ فائدہ ہے. لوگ کہتے ہیں چرچ میں یہ مسائل ہیں, مسیحیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مسیحیوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں پولس رسول کہتے ہیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں مل کر کیا پیدا کرتی ہیں؟ آپ کی دکھ, آپ کی تکلیفیں, آپ کی ناکامیاں, آپ کی مایوسیاں, آپ کی پریشانیاں, آپ کے اندر جتنے درد ہیں, جتنی مایوسی ہے, یہ سب چیزیں مل کر آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. بلیو می, یہ سب چیزیں اگر آپ نے مسیح یسوع کو اپنی زندگی دے دی ہے تو ایک بات کی شیورٹی ہے, آپ ٹھیک ٹریک پر ہیں. ایک بات کی شیورٹی ہے, آپ کہاں پر ہیں؟ ٹھیک ٹریک پر چل رہے ہیں. اگر آپ یسوع کی کشتی میں سوار ہو گئے ہیں پھر آپ جا ادھر ہی رہے ہیں جدھر یسوع لے کے جا رہا ہے. میں اکثر یہ واقعہ شیئر کرتی ہوں. جب چائنا میں گئے تو ہماری جو فلائٹ تھی وہ بیجنگ کے شہر میں تھی. تو اب جب ہم بیجنگ شہر میں گئے وہاں پہ سارے چائنیز تھے, انگلش بہت کم لوگوں کو, بلکہ کسی کو بھی نہیں آتی تھی. ہم لوگ میپ لے کر چائنا پھرنے لگ پڑے. مطلب میپ لیا اور ٹرین پکڑی, ادھر گئے, ادھر اترے, میپ سے دیکھا آگے اسٹیشن پہ گھومنے کی جگہ کون سی ہے, گوگل کو یوز کیا, اور ہم لوگ بیجنگ کی ایک جھیل پر گئے جو بڑی خوبصورت تھی. اور ہم لوگ جب وہاں پر اس جھیل پر گئے تو وہ جھیل بہت بڑی تھی, اور اس جھیل میں آپ سب نے کروز دیکھا ہوگا, ٹیلی ویژن پر موویز یا ڈراماز میں اکثر دکھایا جاتا ہے. بہت بڑے شپس ہوتے ہیں جہاں پر ایون لوگ پروگرامز بھی کرتے ہیں, پارٹیز بھی کرتے ہیں, اور اس کی منزلیں ہوتی ہیں شپس کی, اسے کروز کہا جاتا ہے. سو ہم لوگوں نے, ہم ساری فرینڈس نے, ہمارے ساتھ ہمارے سینئرس بھی تھے, ہم لوگ اس شپ میں سوار ہوئے, ہم نے ٹکٹس لیے, اس شپ میں بیٹھ گئے. اب جب کروز اب جانا شروع ہوا تو ہم لوگ بڑے خوش تھے. پہلی بات ہم پاکستانی تھے تو ہم ٹک نہیں رہے تھے. دوسری بات یہ چائنیز لوگوں کو ہماری ناک بہت پسند آ رہی تھی, وہ تو ہمارے ساتھ تصویریں بناتے جا رہے تھے, اپنے بچے ہمیں دے رہے تھے کہ ان کے ساتھ تصویر بنائیں. سو ان کی بیچاروں کی تھوڑی نوز ایسی تھی, ہماری تھوڑی نوز ایسی تھی, تو وہ لوگ ہمیں بڑی ویلیو دے رہے تھے. اب ایک جو منزل ہے وہاں پہ کھانا لگا ہے, فوڈ پوائنٹ ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, اوپر والی میں لوگ میوزک سن رہے ہیں, کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, اوپر ٹی پارٹی چل رہی ہے, سب سے اوپر لوگ پکچرز بنا رہے ہیں. سو ہم جو 5-6 لڑکیاں تھیں, ہم کہیں بھی نہیں ٹکی. ہم پہلے نیچے گئے, تھوڑا سا کھانا کھایا, پھر ادھر گئے, پھر اوپر گئے, پھر چائے پی, پھر اوپر گئے, تصویریں بنائی. اب آپ دیکھیں کہ اس پورے شپ میں اگر یہ پورا مذبح جو ہے, اگر وہ کروز کا شپ ہے تو شپ اس طرف جا رہا ہے, لیکن ہم لوگ تو بھاگتے ادھر جا رہی تھی. تو کیا ہم شپ سے اپوزٹ جا رہے تھے؟ ہم جا تو شپ کے ساتھ ہی رہے تھے. پھر ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے, پھر ہم نیچے آئے, پھر ہم اوپر گئے, پھر ادھر گئے, پھر ادھر گئے. ہم نے جتنی بھی موومنٹ کی اس شپ میں رہتے ہوئے, ہو سکتا ہے اس شپ پر کچھ لوگ غریب ہوں, ہو سکتا ہے اس شپ پر کچھ کھانا کھلانے والے تھے, کچھ صفائی کرنے والے تھے, کچھ بیچ رہے تھے, کچھ خرید رہے تھے, کوئی بڑا پریشان بھی ہوگا اس شپ پر, اس کروز پر بہت سے لوگ ہماری طرح خوش بھی ہوں گے. سب فرق کریئرز کے ساتھ, سب فرق سوچ کے ساتھ, سب فرق حالات کے ساتھ اس کروز کے اندر موجود تھے. اب ہم چاہے ادھر جائیں,
چاہے ہم اوپر جائیں، چاہے ہم نیچے آئیں، چاہے ہم ادھر جائیں، مجھے آپ سب بتائیں کروز کس طرف جا رہا تھا، تو پھر ہم کدھر جا رہے تھے؟ یاد رکھیں، اگر آپ سب مسیح یسوع کی کشتی میں سوار ہو چکے ہیں، حالات کچھ بھی ہوں، آپ جا ادھر ہی رہے ہیں جدھر یسوع آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں حالات کچھ بھی ہوں، بس کشتی میں رہیں، کشتی سے نہ اتریے گا۔ یسوع کی کشتی میں رہیں، وہ لے کر آپ کو منزل کے پاس ضرور جائے گا۔ خداوند کے عظیم خادم جان سی ہچنسن کہتے ہیں، میں یسوع کی پیروی اس لیے نہیں کرتا کہ یسوع شفا کا وعدہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے بہت سے ایمانداروں کو بیماری کے باعث مرتے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یسوع کی پیروی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یسوع تحفظ کا وعدہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے بہت سے مسیحیوں کو قتل ہوتے دیکھا، میں نے بہت سے مسیحیوں کو بم دھماکوں میں مرتے دیکھا۔ وہ کہتا ہے میں یسوع کی پیروی اس لیے نہیں کرتا کہ یسوع مسیح دنیا پر بہت سی برکات کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یسوع کی پیروی صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اس غیر یقینی دنیا میں ایک یقینی زندگی کا اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ صرف یسوع مسیح ہے۔ سوال یہ ہے جسے لے کر ہم سب آج یہاں سے جائیں گے، اور وہ سوال یہ ہے، کیا آپ یسوع کی پیروی یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یسوع مجھے اس دنیا میں اچھے حالات ہیں، اس دنیا میں برکت دے، اس دنیا میں فیمس کرے، یا اس دنیا میں اچھا حالات دے؟ یا آپ یسوع کی پیروی اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو آسمان والا اچھا خزانہ عطا کرے، وہ آپ کے ساتھ ابدیت گزارے؟ بالغ ایمان کی 3 صفات۔ پہلی صفت بالغ ایمان